गुड मॉर्निंग नम्रा। गुड मॉर्निंग। विजिबल है? 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 कौन बेटे? किसका? पूरी क्लास का है? कितने बजे से? पूरी क्लास का तो नहीं पेपर है। जिसके पास मेल आया वो जाए। जिनके पास मेल आया वो अपना जाए, और नहीं तो आप लोग के पास सबसे सही तरीका है ना भाई, पेपर ऑनलाइन आया है, अपना करते रहिए। तो यहाँ तो चल ही रहा है। और जिनका नहीं है वो अपनी क्लास कंटिन्यू करें। ठीक है? ठीक है श्रेयांश। हाँ, जिनके पास मेल आया है वो अपना करें। भाई आप अपना मोबाइल से वगैरह से ज्वाइन कर लीजिए क्लास, बाकी काम अपना उससे लैपटॉप पे करते रहिए, सुनते रहिए। लिख दो, अटेंडेंस सबकी दे देंगे, आप उसके लिए परेशान ना हो। लिख दोगे, लिखोगे तो ही तभी तो मिलेगी। लेकिन मैं जो दूसरा बता रहा हूँ वो भी ध्यान रखो कि पैरेलली चलते रहो, सुनते भी रहो। सब लोग, जितने लोग जा रहे हैं सिर्फ वही लिखें, सब लोग ना लिखें भाई। अभिषेक विश्वकर्मा तुम्हारा भी टेस्ट है? आयुष? आयुष? ठीक है, चलो लिखो। अवंतिका, गुड मॉर्निंग। विजिबल है स्क्रीन? वेरी गुड। तुम्हारा भी टेस्ट है? ओके बेटे, ओके, तो आप फिर रहिए, क्लास करिए, ठीक है? No need to disconnect yourself. You can also manage by both class as well as your test also. So now, as I introduce about the topic responsibilities of transport layer, and also told you one responsibility,
That was process to process delivery. Process to process delivery. I am again going to revise that, and further responsibilities will also discuss. So process to process delivery means point to point delivery. So while data link layer requires the MAC address, because it is very important to establish connection from source to destination of source or destination host to correctly deliver a frame and network. That network layer requires the IP address for appropriate routing packets in a similar way as transport layer requires a port number to correctly deliver the segment of data. So process to process यानी point to point delivery is the important and key task of your transport layer. A port number, which is I already told you, is a 16-bit address used to identify any client server program uniquely. ठीक है, जो पोर्ट नंबर होता है वो आपका एक 16-बिट यूनिक एड्रेस होता है जो कि डिफाइन करता है और रिप्रेजेंट करता है एनी क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम जिसके थ्रू वो अटैच है. सेकेंड इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज योर एंड टू एंड डिलीवरी. एंड टू एंड डिलीवरी का मतलब जो मेन सोर्स एंड द मेन रिसीवर. पॉइंट टू पॉइंट और प्रोसेस टू प्रोसेस मींस जो डिफरेंट पाथ्स के आपके हाल्ट या सब स्टेशन होते हैं वहां की बात हो रही है. लेकिन एंड टू एंड का मतलब एक्चुअल सोर्स एंड द एक्चुअल डेस्टिनेशन. So the transport layer is responsible for creating end-to-end connection. वो मैं आपको बताऊंगा कनेक्शन किस तरह से establish होता है between two or more, for which it mainly uses two type of protocol. First one is TCP and second is UDP. TCP is for connection oriented services, connection oriented packet delivery, and UDP is for connectionless packet traveling and connectionless path of source and destination. TCP जो आपका ये वाला प्रोटोकॉल है, that ensure reliable delivery. I already told you drawback of UDP and benefit of TCP. TCP ensure reliable delivery of message and is used in various application, while UDP, that is your unreliable, that provide unreliable delivery, is a stateless and best effort delivery. Best effort delivery का मतलब to a large extent it attempts to provide a good and better service, but it does not sure or guarantee that the packet delivery is reliable and must be delivered to the destination end. There may be some unauthorized access, there may be some error causes to lose the packet. ये हो सकता है, इसलिए इसकी कोई भी गारंटी नहीं है. लेकिन फिर भी पॉलिसी जो यूज करता है दैट इज बेस्ट एफर्ट डिलीवरी प्रोसेस या पॉलिसी. इट इज सुटेबल फॉर द एप्लीकेशन विच हैव लिटिल कंसर्न विद फ्लो और एरर कंट्रोल. मीन जहां पे अनसोफिस्टिकेटेड डेटा होता है, बस ये कि पहुंचना है और नहीं पहुंचेगा तो दोबारा फिर से हम रीसेंड कर देंगे. जब इस तरह की मेंटेलिटी या इस तरह की कम्युनिकेशन जो स्टैब्लिश होता है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन वाया कनेक्शनलेस मोड, तब इस तरह की मेन यूडीपी प्रोटोकॉल की जरूरत होती है. या कनेक्शन हम लोग इसीलिए इस्टेब्लिश ही कनेक्शनलेस सर्विस के थ्रू करते हैं. ठीक है. थर्ड इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग. मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग भी आपको पता है. अवंतिका मल्टीप्लेक्सिंग बताएंगी बेटा? है? अच्छा. अभिनव, अभिनव मौर्य,
अभिनव मौर्य, उन्होंने तो ज्वाइन किया था। अंशुमान, हाँ चलो। ये बताओ मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? मल्टीप्लेक्सिंग का बस सिर्फ कॉन्सेप्ट बताओ, हमें बहुत ज्यादा डेफिनेशन नहीं चाहिए। आप मुझे कॉन्सेप्ट बताओ मल्टीप्लेक्सिंग से आप समझते क्या है? मतलब नहीं समझे? मतलब नहीं समझे, क्या बता रहे हो? डिम्पल बेटे, व्हाट डू मीन बाय मल्टीप्लेक्सिंग? मल्टीप्लेक्सिंग बताओ डिम्पल। मीन्स देखिए, मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब वन थिंग एक्ट एज मैनी वेज। जो पॉलीमॉर्फिज्म का आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि एक पर्टिकुलर डिवाइस या मशीन के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, या इन अ सिंगल प्लेस डिफरेंट फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मल्टीप्लेक्सिंग allows simultaneous use of different application over a network which is running on a host. You can also show that the transport layer provide this mechanism which enable us to send packet stream from various application simultaneously over a network. Multiplexing is the concept. It also the transport layer accept these packets from different processes differentiated by their port number and passes them to the network layer after adding पावर हेडर, या जो भी कोई भी हेडर, प्रॉपर हेडर किसी भी तरह का हो या पावर हेडर किसी टाइप का लगा हो जिससे कि वो रिकॉग्नाइज हो सके, वो काम ये ट्रांसपोर्ट लेयर कर देती है। और डीप लर्निंग मतलब क्या होता है? एट द रिसीवर एंड वेन एवर रिक्वायर्ड द obtained data coming from various process, it segregate from the receiver end so that the packet will reach their original destination at fixed interval of time. Transport receives the segment of data from the network layer and deliver it to the appropriate process running on the receiver machine. So this is the multiplexing and demultiplexing. बाद में उसको फिर सेग्रीगेट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे मशीन के रिसीवर एंड पे आपका डेटा सेव कर दिया जाता है। वहां पे एक पर्टिकुलर सोर्स के थ्रू आता है और उसको कंबाइन करके फिर फर्दर पाथ तक लेके जाते हैं, रिसीवर तक लेके जाते हैं, और उसके बाद सेग्रीगेट कर दिया जाता है एट द डेस्टिनेशन एंड। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल, आकृति, आकृति, आकृति क्या बात है बेटा? आवाज नहीं आ रही क्या? काजल वर्मा, काजल वर्मा, आप लोग दोबारा ज्वाइन करो। काजल वर्मा, काजल बेटा अगेन ज्वाइन करो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आफ्ताब, बेटा कंजेशन क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय कंजेशन?
अरे टेस्ट तो दो, मैं पूछ रहा हूँ कंजेशन क्या होता है, टेस्ट दो आराम से। कंजेशन। काजल। काजल वर्मा। आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से माइक सही करो अपना। पल्लवी। पल्लवी लोधी। बहुत दिनों बाद तुमने क्लास ज्वाइन की, क्या दिक्कत हो गई थी? क्या प्रॉब्लम? अच्छा बेटा, कंजेशन बताओ क्या होता है। ये मैं पूछ रहा हूँ कंजेशन होता क्यों है, रीट्रांसमिशन क्यों होता है, क्या ऐसे कारण है जो रीट्रांसमिशन होता है? नहीं बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ है। प्रज्ञा। बेटा कंजेशन क्या होता है? नहीं, कंजेशन होता क्यों है, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए, कंजेशन इज अ सिचुएशन, मैंने आपको कई बार बताया, कंजेशन जो कंजेस्टेड वर्ड है उसी का ही टेक्निकल टर्म है या नेटवर्किंग में कंजेशन। कंजेशन इज a situation in which too many sources over a network attempt to send their data or packet to the destination। जब एक साथ बहुत ज्यादा लोग, जैसे ट्रैफिक का मतलब क्या होता है भाई, ट्रैफिक हमने कहा ट्रैफिक बहुत कंजेस्टेड है, बहुत जैम है। ये सब कंडीशन क्यों होती है? जब पाथ आपका जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है और जो नंबर ऑफ सोर्सेज हैं जो नेटवर्क की कैपेसिटी से ज्यादा हो जा रहे हैं, नंबर ऑफ जो ट्रेवलर्स हैं वो ज्यादा हो जा रहे हैं, देन देयर rises a condition of congestion। So congestion is a situation in which too many sources over a network attempt to send data and the router buffer start overflowing, due to which loss of packet occur। congestion तभी होता है। सो एज अ रिजल्ट पल्लवी, जब कंजेशन हो जाता है तब रीट्रांसमिशन ऑफ पैकेट फ्रॉम द सोर्स इज कैरीड आउट। पल्लवी, बात समझ में आई? रीट्रांसमिशन तो होता है, लेकिन क्यों होता है, वो इसीलिए होता है, जब कंजेशन होता है तब रीट्रांसमिशन होता है। ठीक। हाँ। और जब हम रीट्रांसमिशन करते हैं तो क्या होता है, फिर से कंजेशन आ जाता है। भाई जब आप रीट्रांसमिट करेंगे तो फिर से ऑलरेडी उसमें है, एक आपका अभी पड़ा हुआ है, रीट्रांसमिशन भी किया है, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो फिर से कंजेशन हो जाता है। सो इन दिस सिचुएशन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड कंजेशन कंट्रोल। और इसके दो तरीके होते हैं, पहला ओपन लूप, दूसरा क्लोज लूप। ठीक। ओपन लूप में हमने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज टेक्निक्स होती हैं, और क्लोज लूप में भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, दोनों हमने आपको डिटेल में डिस्कस भी की हैं। और उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट आता है ट्रैफिक शेपिंग। ट्रैफिक शेपिंग के ही कॉन्टेक्स्ट में दो आपको एल्गोरिथम या टेक्निक डिस्कस की हमने, वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट आर लीकी बकेट एल्गोरिथम and second one is your token bucket algorithm।
leaky bucket algorithm and token bucket algorithm. So these are the method of congestion control. These are the method of congestion control. बात समझ में आई? फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा इंटीग्रिटी. डेटा इंटीग्रिटी means originality of data, purity of data. So transport layer checks for errors in the message coming, अभी error detection भी है, from application layer by using error detection code. So main responsibility of transport layer to keep the data at its original. So data integrity can be achieved with the help of transport layer. सिक्स्थ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एरर करेक्शन. एरर करेक्शन. So there are number of methods by which you can detect the error and finally correct the detected error. There are different methods. First of all, computing checksum. It also checks whether the received data is not corrupted and use the ACK and NACK जो acknowledgement ACK and NACK जो services होती है ये properly perform की जाए to inform the sender if data has arrived or not. Checks for the integrity or the originality of data. So there are number of methods. Checksum field is used to error detection and the error correction. Last important responsibility is flow control. फ्लो कंट्रोल. देखिए फ्लो कंट्रोल डेटा लिंक लेयर में भी था, ट्रांसपोर्ट लेयर में भी है. ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स अ फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म बिटवीन different adjacent layer of the TCP/IP model as well as OSI model and also provide flow control between the two nodes, sender or receivers, and the sub nodes also. TCP also prevent data loss due to a fast sender and slow receiver by imposing डिफरेंट फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल और टेक्निक, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको जो बताए थे प्रोटोकॉल, दैट इज योर स्टॉप एंड वेट, और दूसरा था स्लाइडिंग विंडो. दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल थे, स्टॉप एंड वेट एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल. ये मैं ऑलरेडी आपको इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा लिंक में बताया था, बट इट स्टिल इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर. तो स्टॉप एंड वेट में फर्स्ट यू सेंड द पैकेट और योर डेटा और द एंटायर मैसेज, बिकॉज ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर योर डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इंटायरली. फुल मैसेज की जो बात होती है या गारंटी होती है ये ट्रांसपोर्ट लेयर ही प्रोवाइड करती है. ठीक, तो सबसे पहले मैसेज भेजा जाता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, और अगर स्मॉल मैसेज और पूरा एडवांस भेज दिया जाता है तो उसके बाद वेट करते हैं एक्नॉलेजमेंट का. until unless acknowledgement not received, next packet is not sent to the receiver. As soon as acknowledgement is received, against the sent packet, second packet is sent. If negative acknowledgement received NACK, then retransmission is carried out. सेकेंड है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल. स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में एक दो टाइप की पहले एक तो विंडो हो जाती है, एक सेंडर विंडो, रिसीवर विंडो. दोनों अपने एंड पे बना के रखते हैं. सेंडर अपने एंड पे विंडो बनाता है और रिसीवर अपने एंड पे विंडो बनाता है, और जितने फॉर्मेट की इसकी कैपेसिटी होती है उतने ही पैकेट्स एक उसमें रहते हैं, फ्रेम में रहते हैं. उसमें से अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, पैकेट्स आर सेंड. More than one packet is sent simultaneously, 2, 3, 4, depending the capacity of receiver window or the receiver side.
पैकेट जब सेंड कर दिए जाते हैं तो उनके अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट आने तक का वेट किया जाता है। एक्नॉलेजमेंट जब आएगा, जैसे आपने 3 पैकेट भेजे हैं तो जो एक्नॉलेजमेंट आएगा वो 3 आएगा, यानी 3 सक्सेसफुल आए, ठीक। और नहीं तो 2 आए हैं, 3 एक का नहीं आया, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी आएगी, तो आप उसको रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। एज सुन एज एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड, सेंडर विंडो ग्रोज अप टुवर्ड्स राइट, और उसकी कैपेसिटी तक फिर से पैकेट आ जाएंगे, 7-6 की जो भी रिसीवर की या सेंडर विंडो की कैपेसिटी होगी, और फिर से पैकेट सेंड कर जाएंगे। एंड वाइस वर्सा जो प्रोसेस है वो रिसीवर विंडो पे भी होगा, उसमें जितने पैकेट का एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया जाएगा उसने के बाद आपकी विंडो फिर से ग्रो हो जाएगी, और जब तक सेंड नहीं कर पाएंगे या रिसीवर आपका सेंडर आपका एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तब तक वो श्रिंकिंग स्टेट में ही रहती है। दोनों ही साइड ये प्रोसेस आपका चलता रहता है पैरेलली। बाय दिस यू आर एबल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ पैकेट्स, फ्लो ऑफ डेटा, विच इज द ऑप्टिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। कंप्लीट मैसेज की सेंडर से डेस्टिनेशन तक जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की ही होती है। So these are the services of transport layer. Now come to the another important topic जो आपका है वो होता है कनेक्शन का। ठीक, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये जब ने बताया प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, एंड टू एंड डिलीवरी, ये जितना भी है ये तभी हो पाएगा जब आप कनेक्शन करेंगे। सो एंड टू एंड डिलीवरी दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड विद 2 मोड। जब आप बात करते हैं आइदर कनेक्शन ओरिएंटेड मोड और कनेक्शन लेस। कनेक्शन जाएगा कैसे पैकेट, या तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे कनेक्शन ओरिएंटेड, या कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब वायर ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस वायरलेस। तो चाहे वो कनेक्शन ओरिएंटेड हो या आपका सेकेंड मेथड कनेक्शन लेस हो, दोनों ही टेक्निक में जो मोर कॉमनली आपका काम है वो है कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। एंड अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल establish a virtual circuit or pathway through the internet between the sender and the receiver. All of the packets belonging to a message are then sent over the path जो आपने establish किया है। Using a single pathway for entire message facilitates the acknowledgement process। बिना एक्नॉलेजमेंट के कोई काम नहीं होगा। एंड रीट्रांसमिशन ऑफ डैमेज्ड और लॉस्ट फ्रेम्स और पैकेट आल्सो। ठीक, इसीलिए मैंने बताया जो कनेक्शन ओरिएंटेड काफी रिलायबल होती है, क्योंकि यहाँ पे इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं और इसमें आपकी जिम्मेदारी होती है रिसीवर एंड की रिसीव करे और अकॉर्डिंग टू जो पैकेट रिसीव करे उनके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स भी दे, यानी एक्नॉलेजमेंट भी दे। कनेक्शन जो ओरिएंटेड आपका या कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस है, इसके 3 फेज होते हैं। कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस, इसके 3 फेज होते हैं। पहला इस्टेब्लिशमेंट, second one is data transfer, and third one is connection termination। कनेक्शन टर्मिनेशन, जो कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस है, दिस इज बाइफरकेटेड इनटू 3 processes। First one is establishment of the connection, second one is data transfer, and third one is your connection termination। एक बार डेटा ट्रांसफर हो गया
तो टर्मिनेट भी करना है, वो परमानेंट नहीं करना है, ध्यान रखना है, अदरवाइज नेटवर्क के रिसोर्सेज आपके बिजी हो जाएंगे और जो दूसरा प्रोसेस है वो वेट करता रहेगा फॉर एंड अनडेफिनिट ऑफ टाइम, इनडेफिनिट ऑफ टाइम, और डेडलॉक की कंडीशन भी राइज हो सकती है. So before either communicant device can send data to other, initiating device must first determine the availability of the other to exchange data, and a pathway must be found through the network by which data or the packet can be sent. This step is called connection establishment. ये वाला जो है कनेक्शन स्टैब्लिश का मतलब ही यही होता है कि सबसे पहले रिसीवर को तैयार करे, फाइंड आउट करे कि इट इज कैपेबल और द कैपेसिटी इज देयर एंड इट इज आल्सो फ्री टू कैप्चर योर डेटा, एंड आल्सो डिटरमाइन द मीनिंगफुल पाथ और द नेटवर्क स्टैब्लिशमेंट प्रोसेस. एक्चुअली कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट रिक्वायर्स three actions in what also sometimes known as three-way handshake. थ्री वे हैंडशेक. फर्स्ट जो मेथड एक होता है, सबसे पहले जो आपका सिस्टम है, द कंप्यूटर और द सिस्टम रिक्वेस्टिंग द कनेक्शन रिक्वेस्ट. सबसे पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड की जाती है टू द इंटेंटेड रिसीवर, एक रिक्वेस्ट सेंड कर दी जाती है. थ्री वे हैंड चेकिंग में पहला प्रोसेस आपका यही होता है. ठीक, उसके बाद सेकंड, जो आपका रिस्पॉन्डिंग सिस्टम है या रिसीवर है, रिटर्न्स अ कंफर्मेशन पैकेट टू द रिक्वेस्टिंग कंपोनेंट, यानी इसको हम कह सकते हैं कनेक्शन कंफर्मेशन. कनेक्शन कंफर्मेशन जो आपका रिसीवर एंड है, इट रिस्पॉन्ड टू द सेंडर विद अ कंफर्मेशन पैकेट टू द रिक्वेस्टिंग सिस्टम और द सेंडर. थर्ड जो फेज है, द रिक्वेस्टिंग कंप्यूटर यानी जो सेंडर है, रिटर्न अ पैकेट एक्नॉलेजमेंट द कनेक्शन, यानी एक्नॉलेजमेंट कंफर्मेशन. तो पहले रिक्वेस्ट भेजी, फिर रिसीवर ने कंफर्म कर दिया रिक्वेस्ट को, एक्सेप्ट हो गई, और सेंडर ने फिर से एक्नॉलेजमेंट भेज दिया जो कि उसको कंफर्मेशन मिला था उसके अगेंस्ट. तब ये प्रोसेस आपका डेटा का ट्रांसफर का प्रोसेस शुरू होता है. इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं. मैं इसका डायग्राम बना देता हूं करस्पॉन्डिंग. ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है. ठीक, ये टाइम एक यहाँ पे हमेशा आपका चलता रहता है, क्योंकि जो आपको रिसोर्स एलोकेट होते हैं वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, तो टाइमर हमेशा चलता रहता है. तो सबसे पहले सेंडर एक रिक्वेस्ट भेजता है, कहता है कनेक्शन रिक्वेस्ट के लिए. ठीक, उसके बाद जो रिसीवर कंफर्म कर देता है, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, और जब इसको रिसीवर को सेंडर को मिल जाता है कंफर्मेशन, तो ये एक्नॉलेजमेंट भेज देता है. Acknowledgement of confirmation. This process is known as three-way handshake.
3-way handshake. This process is known as 3-way handshake. मतलब जो सेंडर है सबसे पहले कंफर्म जो आपकी कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करेगा, रिसीवर कंफर्मेशन देगा कनेक्शन के लिए, यानी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, और जैसे ही एक्सेप्ट सेंडर के पास कंफर्मेशन आ जाएगा वो एक्नॉलेज कर देगा ऑफ कंफर्मेशन, और उसके बाद आपका डेटा सेंड हो जाएगा। ये डायग्राम सभी को समझ में आया? हर्षित, काजल गुप्ता, तुम्हारा भी टेस्ट है बेटा? डायग्राम देख पा रही हो? अच्छा, नाउ देख पा रही हैं? नाउ हाँ, तो ये 3-वे हैंडशेक कहलाता है। सबसे पहले सेंडर कनेक्शन रिक्वेस्ट के लिए मैसेज देगा, रिसीवर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज देगा, यानी एक्सेप्ट कर लेगा, और क्या सेंडर जो जैसे ही एक्सेप्टेंस आई तो सेंडर फिर से इसको एक्नॉलेज कर देगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज 3-वे हैंडशेक। जो हैंडशेकिंग है 3-वे हैंडशेक। आई थिंक यू आर आल्सो aware about in the terms or in the context of database management system। शायद पिछले सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा होगा, जब डेटा दो जो है ट्रांजेक्शन कैरिड आउट होते हैं, दो प्रोसेस कैरिड आउट होते हैं इन द टर्म ऑफ टेबल और द ट्रांजेक्शन जो डेटाबेस में परफॉर्म होते हैं, तब भी बिफोर द ट्रांजेक्शन इज गोइंग टू प्रोसेस इस तरह का हैंड शेकिंग होता है, वहां पे भी पढ़ाया गया होगा। नाउ सेकेंड प्रोसेस जो आपका है, सेकेंड प्रोसेस है कनेक्शन एस्टैब्लिश प्रोसेस में, दैट इज योर डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर में आप क्या करते हैं? दिस इज द डिजायर्ड टास्क आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कनेक्शन। ये जो आपने कर लिया है आपका डेटा ट्रांसफर हो जाता है, यानी जो मैसेज है आपका ये सेंडर टू रिसीवर, ये मैसेज आपका चला जाता है। सेंडर टू रिसीवर, सेंडर रिसीवर, मैसेज आपका सेंडर टू रिसीवर चला जाता है इस कनेक्शन के थ्रू। ठीक, चला जाने का मतलब है यहाँ पे पहले भेजेगा, भाई प्रोसेस पूरा वही होगा, स्टॉप एंड वेट या स्लाइडिंग विंडो के फॉर्म में होगा, डिपेंड करता है अबाउट द साइज ऑफ द मैसेज और द पैकेट्स। तो आइदर 1 by 1 एक पैकेट भेजा, फिर कंफर्मेशन यानी एक्नॉलेजमेंट आ गया, फिर दूसरा पैकेट भेजा, फिर एक्नॉलेजमेंट आ गया, नेगेटिव आया तो रीट्रांसमिट कर दिया, या बहुत ज्यादा है तो बल्क में अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल 3 से 4 फ्रेम भेज दिए गए, वेट कर लिया गया, एक्नॉलेजमेंट आ गया, फिर से विंडो में आपके फ्रेम ऐड हो गए, फिर से भेज दिए, फिर से एक्नॉलेजमेंट आ गया, जहां जरूरत हुई वहां रीट्रांसमिशन भी आपका हो गया। तो ये डेटा ट्रांसफर हो गया। थर्ड प्रोसेस होता है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर कनेक्शन टर्मिनेशन। कहीं कहीं आपको मिलेगा फाइनलाइजेशन। वंस ऑल द डेटा हैव बीन ट्रांसफर्ड द कनेक्शन मस्ट बी टर्मिनेटेड। एक कनेक्शन टर्मिनेशन प्रोसेस भी सेम जैसे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होता था, बिल्कुल सेम उसी तरह, कोई अंतर नहीं है। ये आपका सेंडर है, दिस इज योर रिसीवर। टाइम ध्यान रखने हैं सब जगह, कोई भी प्रोसेस हो टाइम बाउंड होगा। ठीक, तो सबसे पहले जब सेंडर ने सारा डेटा रिसीवर की ओर भेज दिया और रिसीवर ने भी सारा डेटा एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर से सेंडर की कॉल रहेगी, तो सेंडर फिर से एक मैसेज भेजेगा, डिसकनेक्शन रिक्वेस्ट। डिसकनेक्शन रिक्वेस्ट, फिर से सेंडर डिसकनेक्शन रिक्वेस्ट को भेजेगा रिसीवर के पास।
जैसे ही रिसीवर के पास डिसकनेक्शन की रिक्वेस्ट आई, इसने डिसकनेक्शन को कंफर्म कर दिया। जैसे ही रिक्वेस्ट आई और डेटा अब बचा नहीं है, तो इसने भी, और इसने ऑलरेडी सारे एक्नॉलेजमेंट भेज दिए अगेंस्ट द डेटा पैकेट रिसीव। इसने फिर से उसको डिसकनेक्शन को एक्सेप्ट कर दिया और रिक्वेस्ट को कंफर्म कर दिया। और जब एक बार कंफर्म हो गया तो एक्नॉलेजमेंट भेज दिया सेंडर ने। एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंफर्मेशन, तो जो डिसकनेक्शन कंफर्मेशन भेजा था, इसके अगेंस्ट में एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंफर्मेशन और कनेक्शन आपका रिलीज हो गया। ठीक, तो इन शॉर्ट वी कैन यू एनालाइज फ्रॉम दिस डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंडर रिक्वेस्ट अ डिसकनेक्शन रिक्वेस्ट, जो रिसीवर कंफर्म द डिसकनेक्शन रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्टिंग कंप्यूटर और द सेंडर एक्नॉलेज द कंफर्मेशन, और फाइनली आपका कनेक्शन रिलीज हो गया। तो देखिए दोनों डायग्राम लगभग सेम, कनेक्शन रिक्वेस्ट का और डिसकनेक्शन रिक्वेस्ट का कोई अंतर नहीं है, बस जहां जहां कनेक्शन है वहां डिसकनेक्शन कर दीजिए। प्रोसीजर सेम वही होगा, आइदर कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट और द कनेक्शन टर्मिनेशन। जो दोनों ही आपके मेथड्स या जो प्रोसेस है, इन दोनों में ही थ्री वे हैंडशेक प्रोटोकॉल या थ्री वे हैंडशेक प्रोसीजर कैरिड आउट होता है। ठीक है, आशीष दुबे बहुत देर से ज्वाइन किया। मुझे लग रहा है ये जो है फिर से चले गए, टर्मिनेट हो गए, क्या हुआ? अंशुमान, तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो? अच्छा, डायग्राम दिख रहा है डिसकनेक्शन का, समझ में आया दोनों प्रोसीजर? हाँ, डायग्राम से ही इसको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जितने मैं बता रहा हूँ, जिन पे डायग्राम को ज्यादा फोकस करने के लिए कह रहा हूँ, सब इंपॉर्टेंट है ये। तो एक बार आप चाहे कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट का डायग्राम देख लीजिए या डिसकनेक्शन का देख लीजिए, दोनों को वाइस वर्सा आप बना सकते हैं। प्रोसीजर आपके तीन ही होते हैं कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट की जब हम बात करते हैं। तो जैसा हमने यहां पे बताया, इस्टेब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफर, टर्मिनेशन, तीनों होंगे, तब जाकर के पूरा कनेक्शन आपका इस्टेब्लिश होगा। और ये हैपन होता है ओनली इन कनेक्शन ओरिएंटेड, वायर ओरिएंटेड, यहां पे ही बात होती है। वायरलेस में ये होता ही नहीं है, वहां पे एक मैसेज जाता है और डेटा तुरंत सेंड कर दिया जाता है। दैट्स वाई दैट डिलीवरी इज अनरिलायबल। रिलायबल डिलीवरी कनेक्शन ओरिएंटेड, वायर ओरिएंटेड की ही होती है। इसी डिवाइसेस जो इस मीडियम में आपके कनेक्ट होते हैं, इन्हीं की ही रिलायबल डिलीवरी मानी जाती है कि यही रिलायबल डिलीवरी है। ओके, नाउ कम टू द another important topic, that is differentiate between connection oriented, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्सेस कनेक्शनलेस सर्विसेज। कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शनलेस सर्विसेज को डिफरेंशिएट करना है कि कौन कौन सी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज है, कौन कौन सी कनेक्शन लेस सर्विसेज। मीनवाइल आप लोग अटेंडेंस लिख दीजिए, टाइम भी हो ही गया है लगभग 45 मिनट। चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दीजिए सब लोग। जिन्होंने पोर्टल पे अटेंडेंस लिखी है बस उन्हीं की अटेंडेंस चढ़ेगी, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग।